दोस्तों स्वागत है आज इस सेशन में क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 से लिया गया है जिसको मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2024। पेपर 2 का क्वेश्चन है। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। सही मार्क पे 3 मार्क्स हैं और इनकरेक्ट होने पर -1 मार्क विल बी पेनलाइज्ड। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ tan of sin inverse 3/5 minus 2 into cos inverse 2 upon root 5 is। यहां पर एक जो शब्द है प्रिंसिपल वैल्यूज, ये जो वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, ये इस पूरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बहुत आसान बना देता है। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, लेट मी टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा दैट विल बी tan इनवर्स x minus tan inverse y, that is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. This is going to be one of the formula which will be used. और जो दूसरा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, जो हम हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर इस फार्मूले को हम बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा दैट विल बी 2 tan inverse x. 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज tangent of sin inverse 3/5. This is tangent of sin inverse 3 upon 5 minus 2 cos inverse 2 upon root 5 minus 2 cos inverse 2 upon root 5. This is the question we are supposed to solve. सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin inverse 3/5 को मैं tan inverse के फॉर्म में लाना चाहूंगा। sin inverse 3/5 को I would like to write it in terms of tan inverse. उसी तरह से cos inverse 2 upon root 5 को भी मैं tan inverse के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। So let me begin. This is taking the right triangle, assuming this to be angle A. I can say let sin inverse 3 upon 5 को हम A ले लेते हैं। So sin of A is equal to 3 upon 5. So this is opposite side 3, hypotenuse को हम 5 ले सकते हैं। ट्रिपलेट का इस्तेमाल करो तो ये साइड आपकी 4 हो जाती है। So from here I can say it is tangent of A is 3 upon 4. Tangent of A is 3/4 और A is equal to tan inverse 3 upon 4. So ये जो हमने यहां पर A लिखा था, this A is here sin inverse 3/5. The same A can be taken as tan inverse 3/4. So what I will be doing is, यहां पर sin inverse को मैं रिप्लेस कर दूंगा tan inverse 3 upon 4 से। अब बढ़ते हैं cos inverse 2 upon root by 5 को 2 upon root upon 5 को हम tan inverse के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So let's move for that. So let's take the another right triangle. This is the right triangle. Let this angle be B और मैं cos inverse 2 upon root 5 को B ले लेता हूं। So I can say cos of B is 2 upon root 5. हम जानते हैं कि cos थीटा जो होता है that is adjacent upon hypotenuse. So this is 2, this is root 5. जो परपेंडिकुलर साइड होगी that is 5 minus 4 का root which is 1. So from here tangent of
टेंजेंट ऑफ b कैन बी टेकन एज 1/2 या फिर b इज इक्वल टू tan inverse 1/2. So cos inverse 2/√5 will be replaced by tan inverse 1/2 के साथ. So अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं. So this question, if I move, this can be taken as tan inverse 3/5 को मैं रिप्लेस करूंगा. tan inverse 3/5 will be replaced by, as we saw here, tan inverse 3/5 will be replaced, sin inverse 3/5 will be replaced by tan inverse 3/4 से. So this question is tangent of tan inverse 3/4 minus 2 into cos inverse 2/√5 को हम रिप्लेस करेंगे tan inverse 1/2 से. This is tan inverse 1/2. जैसा मैंने आपको बताया था, the formula to tan inverse x is, यहां पर हम 2 tan inverse x का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे. So tan inverse 3/4 minus tan inverse 2 into 1/2, 1 minus 1/4. This is the one important part, which can be simplified as, this is tangent of tan inverse 3/4 minus tan inverse, यहां पर न्यूमरेटर पार्ट विल बिकम 1 and this is going to be 3/4, which is 4/3. So finally हमारा जो क्वेश्चन जिसको हमने शुरू किया था फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म, वी केम टू टेंजेंट ऑफ tan inverse 3/4 माइनस tan inverse 4/3 पे. So let's move further. Finally we need to solve tangent of tan inverse 3/4, tangent of tan inverse 3/4 minus tan inverse 4/3. अब यहां पर tan inverse x minus tan inverse y का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा. So this is tangent of tan inverse 3/4 minus 4/3 divided by 1 plus 3/4 into 4/3. And if it gets simplified to tangent of tan inverse, this is 9 minus 16 divided by 12 into 1/2. और इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. This is 9 minus 16 is minus 7/24. So this is my answer. So यहां पर जो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, यहां पर जो फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है बहुत ही बेसिक फार्मूला है. दैट इज टेंजेंट ऑफ tan inverse थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा. सो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज -7/24. देखते हैं ऑप्शन के साथ. इट इज -7/24 इज माई final answer. So this is the question which can be solved just based on the NCERT concept. जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है that we are supposed to use the principal value, ये इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बहुत ही आसान बना देता है.
इस सेशन से रिलेटेड या कोई और वैल्यूएबल फीडबैक इन केस यू विश टू शेयर विथ मी, प्लीज व्हाट्सएप मी. My WhatsApp number is 9428403 104. Thank you.